व्हाट डू मीन बाय नॉर्म्स? क्या देखा था हम लोगों ने कल? Basically, norms are the rules and regulations, formal rules or informal rules, we can say, right? Who guides the behavior of individual. That we can say those are the norms. Okay. Every society has its own norms, and norms can be changed according to the society. Yes or no? This we had discussed yesterday. And then we had discussed the same terminology along with the norms, that is normlessness. What do you mean by normlessness? When there are no rules in the society. Okay. And when the situation of no rule in the society will occur, hmm? When the situation will occur, normlessness, when there will be a social change in the society, okay, when there will be a chaos in the society, and when what, exactly, crisis like situation will occur, right? So social norms या फिर normlessness जो होता है, normlessness is not necessarily with respect to only negative thing, right? Normlessness can be positive, that we had discussed, okay? So but then if a person, तो अगला जो discussion है conformity and deviance, that we have to discuss. What is that? So if a person is not following a particular norm, okay, if a person or a group of person is not following a particular or established norms in the society, then we say that person is a deviant. He is acting as a deviant, okay? And those are the person who are following the norms and rules and regulation of the society. We say those are conformist. Yes or no? So that is conformity and deviance. Those who confirms the norms, those are conformists, and those who deny the norms, those are deviants. Yes or no? Right? Understood? बस इतना ही है. But tell me this thing. यहाँ पे फिर discussion ऐसा है कि the person who is deviating from the norm, तो कोई ना कोई तो situation होगी, कोई ना कोई तो उसकी मजबूरी होगी, because and because of that, that person is deviating from the established norms or rules of the society. Yes or no? So when we say conformity, तो बेसिकली conformity क्या होता है? conformity तो सिंपल है कि प्रोसेस बाय इंडिविजुअल्स एडजस्ट टू देयर बिहेवियर. तो फिर अभी हमने वो प्रोसेस करनी है. इकडे या ना, पुढे या ना. क्या है क्या होता है? बर ठीक है. तो प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एडजस्ट देयर बिहेवियर, ठीक है, एटीट्यूड एंड बिलीफ टू द अलाइन सोशल नॉर्म्स, राइट? यस और नो? तो इंडिविजुअल का डिस्कशन है यहाँ पे. तो कौन हो गया? कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ, हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर दिस थिंग. पॉजिटिविस्ट, नॉन पॉजिटिविस्ट, है ना, एंड इंटरप्रिटेटिविस्ट ज्यादा डिस्कशन नहीं है. अरे अरे ते त्याला ते हे करून दे बरं. मी तेच म्हणतोय, तू प्लीज इकडे इकडे बसून जा कुठेतरी. नाही, त्यांना बसू देत यांचं, किंवा तिकडे शिफ्ट होऊन जा ना. हा, काही झालं नाही पण उगाच झालं तर ऑनलाईन वाला डिस्टर्ब होईल असं. हा हा ठीक आहे. आता कम्फर्टेबल आहे? ओके ठीक आहे. चल, हाँ हाँ चालेल. ओके ठीक है. चलो. तो conformity, when we say, so who all are the thinkers for conformity? Those who are non positivist in their perspective. तो सोलोमन एश, ओके, एंड देन अरविंद गॉफमन. अरविंद गॉफमन के बारे में तो कल ही डिस्कशन किया था. यस और नो? सो दीज ऑल आर non positivist who thinks according to the individualistic perspective, who thinks according to the individual, who take into the consideration the individual behavior first. Yes or no? And according to the individual behavior, they go for the societal, and they go for the understanding of social reality, we can say this thing. Yes or no? पहले इंडिविजुअल बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे, एंड देन दे विल गो फॉर अंडरस्टैंडिंग द सोशल रियलिटी. बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम, नॉन पॉजिटिविस्ट क्या कहते हैं? सोशल रियलिटी वेरीज अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल. yes or no? Social reality varies according to the individual. That is the thing they are saying. Who? Non positivist. Yes or no? तो conformity, when we discuss about the conformity, conformity क्योंकि individual पे depend है ना. When I say conformity, I am confirming the social norms
और जो सोशल नॉर्म्स है वो रिटन भी हो सकते हैं, अनरिटन भी हो सकते हैं, यस और नो, राइट? सो इफ आई एम फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स, देन आई एम हु? आई एम कन्फर्मिस्ट, आई गो इनटू द कन्फर्मिस्ट वाला कैटेगरी, क्लियर है, राइट? इफ आई एम डिफाइंग द ट्रैफिक रूल्स, देन आई गो इनटू द डेविएंस वाला कैटेगरी, सिंपल है, राइट? तो अभी इसी एग्जांपल से ये डिस्कशन करेंगे कि सर डेविएंस फिर हमेशा निगेटिव ही होगा क्या? व्हाट डू यू थिंक? डेविएंस इज ऑलवेज नेगेटिव? नो, व्हाई? कल शायद डिस्कस किया था ना ये चीज, हाँ, जैसे कि मैंने कहा था, हाँ यस, वी हैड डिस्कस यस्टरडे ओनली कि महात्मा गांधी हो गए या फिर सोशल रिफॉर्मिस्ट जितने हो गए हैं, होते हैं सारे, कोई से भी सोसाइटी में हो, तो ऑल आर डेविएंट, ओके? व्हाई? बिकॉज दे आर डिफाइंग द एस्टेब्लिश सोशल नॉर्म्स, उनके पीरियड में जो सोशल नॉर्म्स थी वो उन्हें डिफाई कर रहे थे, इसलिए दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज अ deviant in their attitude, okay, right? So somebody is telling, if somebody is discussing about conformity and deviant, so they might be a non positivist wala people, but you see here कि जब नॉन पॉजिटिव डेविएंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो वी हैव द एग्जांपल ऑफ इमाइल डर्कheim एज वेल। सो अभी तो आप लोगों ने कहा कि व्हेन वी सेड डेविएंस, सो वी आर स्टडीइंग व्हाट? नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच। फिर इमाइल डर्कheim का डिस्कशन क्यों है डेविएंस में? Theorize that deviance serve the social function by clearing the moral boundaries, reinforcing norms and prompting the social change। यानी इसका मतलब क्या है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस हियर वी हैव। इमाइल डर्कheim कहते हैं कि यू नीड टू स्टडी द डेविएंस, ओके, बट हाउ यू विल स्टडी द डेविएंस? नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, ओके, नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स डिस्कशन नहीं करेंगे, बट when multiple people are defaulting the social norms, then you think is there any problem in the social norms itself? Are you getting it? Suppose let's take an example of that traffic signal, कोई एग्जांपल लेते हैं, ओके, कि अभी एक ट्रैफिक सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल पे 10 लोग खड़े हैं, ओके, और सडनली 10 के 10 लोगों ने ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर दिया, ओके, तो डू यू थिंक देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन दोज पीपल? अगर प्रॉब्लम होता तो कोई एक बंदा ब्रेक करता ना रूल, यस और नो? अगर 10 में से कोई एक बंदा ब्रेक करता तो आप कहोगे कि ओके वो उसमें प्रॉब्लम है, बंदे में प्रॉब्लम है, राइट? लेकिन अगर 10 के 10 लोग कुछ रूल ब्रेक कर रहे हैं, तो if multiple people are acting like a deviant in the society, then there are problems in the social norms itself. असं खातोय, येते का लक्षात? ओके, so Imal Durkheim is saying in this way कि sir you need to study the deviance, not the individual deviance, but the societal deviance, so that you will understand is there any problem in the existing social norms, or is it a time now for a social change as such? Okay, क्योंकि डेविएंस कब होता है? फॉर लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गांधी जी। हमने कहा कि गांधी जी बीइंग अ डेविएंट, तो फिर गांधी जी के जितने फॉलोअर्स थे, सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, इन सारे मूवमेंट्स में जो जो गांधी जी के फॉलोअर्स थे, तो फिर वो सारे डेविएंट हो गए ना, यस और नो? तो इतने सारे लोग अगर डेविएंट हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि देयर इज अ प्रॉब्लम इन सोसाइटी एंड वी नीड अ सोशल चेंज। तो उस हिसाब से कहता है इमाइल डर्कheim कि यू नीड टू स्टडी द डेविएंस, so that you will identify the need for the social change and you will identify the change in the societal norms। समझ में आ रही है बात? यस और नो? पक्का? कल का टास्क कंप्लीट किया है सब लोगों ने? व्हाई? मैं परसों भी मैंने कहा था कि जो मैं कह रहा हूं वो वर्ड बाय वर्ड करना है, प्लीज डू इट, अदरवाइज इट विल गेट, तो फिर वो स्टक पाइल अप होते जाएगा टारगेट, है ना? तो वो नहीं करना है हमें, राइट? सो प्लीज फॉलो व्हाट आई एम सेइंग एंड देन ओनली इट विल बी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, राइट? तो डू इट, ज्यादा अभी छोटा छोटा है, कम चल रहा है, तो उसमें कर लो कवर, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में, ठीक है?
ओके, कळलंय का हे? राइट, देन देयर इज हॉवर्ड बेकर. हॉवर्ड बेकर क्या कहते हैं? ही हैज गिवन द लेबलिंग अप्रोच. व्हाट इज दिस लेबलिंग अप्रोच और लेबलिंग थ्योरी? एज द नेम सजेस्ट, कि पर्सन once a deviant, always a deviant, because he or she is labeled as a deviant. समझता है का? yes or no? he or she is labeled as a deviant. जैसे कि एक एग्जांपल वापस लेते हैं कि एक बंदा है, उसने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार दिया, ठीक है? सेल्फ डिफेंस में अगर किसी को मार दिया तो उसे क्या हुआ? उसे जेल हो गई, लेकिन जेल उसे कोर्ट में ये प्रूव हो गया कि ओके सेल्फ डिफेंस में इसने किया है तो इसे 1 ही साल की जेल होगी, ठीक है? ओके डन. तो 1 साल में वो बाहर आ गया, लेकिन सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया क्या उसे? नहीं, सोसाइटी इज नॉट एक्सेप्टिंग हिम. व्हाई? The society is saying कि once a deviant always a deviant, so society has tagged him as a criminal, labeled him as a criminal. yes or no? right? तो ये लेबलिंग अप्रोच कहता है हॉवर्ड बेकर का, कि लेबलिंग थ्योरी एग्जामिन हाउ सोसाइटल रिएक्शन टू द डेविएंट बिहेवियर कैन स्टिग्माटाइज द इंडिविजुअल एंड रीइंफोर्स द डेविएंट आइडेंटिटीज. अगर उसे हर बार, हर वक्त सोसाइटी में कोई ना कोई कहता रहेगा कि अरे तू तो जेल जाके आया है, तू तो क्रिमिनल है, तो ही विल एक्ट अ क्राइम ना. यस और नो? ही विल कमिट अ क्राइम ओनली. राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट टाइम तो वो फिर कोई अच्छी चीज करेगा ही नहीं. ही विल ऑलवेज एक्ट एज अ डेविएंट. समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ दिस लेबलिंग अप्रोच, है ना? फॉरवर्ड बेकर ने ये लेबलिंग अप्रोच दिया है हमें. अंडरस्टूड? सो अंडरस्टूड कंफर्मिटी डेविएंस. तो डेविएंस विल ब्रिंग द सोशल चेंज. ये स्टेटमेंट याद रखना है ना? या फिर वहां लिख लो, ये मैंने जैसे कि यहाँ पे दिया है. एसीची गरज आहे का? पर बंद, मलाही गार लागतंय. एक पास करून दे बंद. तो डेवियन्स विल ब्रिंग द सोशल चेंज. जेव्हा तुम्हाला गरज पडेल तेव्हा लावा, ठीक है? समझ ले? अंडरस्टूड? ये आगे जाके वापस डिस्कस करना है. इमेल डरफेम जब डिस्कस करेंगे, सुसाइड जब डिस्कस करेंगे उस वक्त, ठीक है? राइट. देन द नेक्स्ट टर्म वी हैव, दैट इज अ इंटरेस्टिंग टर्म, दैट इज सोशल स्ट्रक्चर. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल सिस्टम. व्हाट डू यू मीन बाय सोशल स्ट्रक्चर? तो अभी तो हम लोगों ने विल डू वन थिंग. हम लोगों ने क्या क्या देखा? वी हैव सीन अ इंडिविजुअल, then group of individual. yes or no? Group of individual forms a society, right? Then we have seen what? institution, social institution. तो अभी सर इंस्टीट्यूशन तो समझ में आ गया, ग्रुप भी समझ में आ गया, इंडिविजुअल भी समझ में आ गया. देन नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज द स्ट्रक्चर? what could be the difference between structure and institution? Social structure and social institution, can they be same? So I say कि this is your structure. Okay, institution is a subset of structure. ठीक है? one structure may or may not have multiple institutions. Are you getting it? yes or no? तो हम लोगों ने डिस्कस किया सी. अभी इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल क्या लिया था? द कोर एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशन इज फैमिली. वी हैड डिस्कस यस्टरडे. ओके, तो फैमिली इज द कोर एग्जांपल ऑफ इंस्टीट्यूशन. ठीक है सर. लेकिन स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो फैमिली इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर. ओके, रिलीजन इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ स्ट्रक्चर्स. ओके, सो जो कोई भी सी. so then what is the difference sir? The difference they have given here, we'll discuss. Read the definition of social structure. What it says, it refers to the organized pattern of social relationship, roles and institutions. ठीक है? So इसीलिए I just told you काय कि institutions, multiple institutions can be there in one structure. Are you getting it? But this pattern of relationship का pattern, relationship कल डिस्कस किया.
सोशल रिलेशनशिप, यस और नो? तो सोशल रिलेशनशिप वॉट एवर बॉन्ड यू एस्टेब्लिश, फादर सन का डिस्कशन किया था हम लोगों ने, राइट? तो सोशल रिलेशनशिप, वॉट एवर सोशल रिलेशनशिप वी एस्टेब्लिश विथ ईच अदर, दैट इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय व्हाट? स्ट्रक्चर, यस और नो? बिकॉज जैसे कि हम लोगों ने कल डिस्कशन किया था कि दो फैमिलीज है, फैमिली नंबर वन, इसमें एक सन है, इसमें एक फादर है, राइट? दिस इज फैमिली नंबर टू, इसमें एक सन है, इसमें एक फादर है। वॉट एवर सोशल रिलेशन दीज टू हैव, ये दोनों अलग हो सकते हैं ना इनके सोशल रिलेशन, यस और नो? बट द रोल इज फिक्स्ड, राइट? He is father here in this family, and this person is also father in this family, yes or no? Role is fixed, but the relation may differ, right? Why the relation may differ? Because of the family values, yes or no? इस फैमिली में सन फादर का रिस्पेक्ट करता है, इस फैमिली में सन फादर का रिस्पेक्ट नहीं करता है, yes or no? राइट? तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द वैल्यूज। तो ये जब डिस्कशन करेंगे तब हम समझेंगे कि दिस इज व्हाट, दिस इज अ फैमिली एज अ इंस्टीट्यूशन, ओके? बिकॉज समथिंग इज वेरिंग, यस और नो? लेकिन उनको, बट द रोल इज स्टिल फिक्स, सन एंड फादर, सन एंड फादर, यस और नो? why the role is fixed? Because they are a part of one structure called family, yes or no? So when we say family as a structure, or when we use the example of family as a structure, we have certain social relations. ये तो कोई डिनाई कर ही नहीं रहा है ना कि they are father and son, yes or no? Their role is defined, their relation is defined, but they are not behaving accordingly, according to the societal norms, because of their respective family values. Are you getting it? समझ में आ रही है बात? So now, if the role is fixed, social relation is fixed, okay, and the norms are fixed, then we say that becomes a structure, बरोबर? But if they vary, then that becomes your institution. Are you getting it? And the next difference is, one structure may have multiple institutions in it, ठीक है? इसीलिए मैंने कहा कि इंस्टीट्यूशन इज अ सबसेट ऑफ स्ट्रक्चर। समझ में आ रही है बात? यस और नो? डन? पक्का? हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो इसीलिए एग्जांपल यहाँ पे वही दिए हैं आपको कि रियल लाइफ एग्जांपल, फैमिली, एजुकेशन सिस्टम, दिस बोथ आर व्हाट? एग्जांपल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर्स, सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है? एग्जांपल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, नॉट सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम अभी बाकी है। इन्स्टिट्यूशन तो हो गया ना, इन्स्टिट्यूशन इकडे स्ट्रक्चर आहे ना, इन्स्टिट्यूशन तिकडे, ते झालं आता इन्स्टिट्यूशन। अंडरस्टूड? काय? व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न? थोडंसं इलॅबरेट कर ना, ऑर्गेनाइज पॅटर्न म्हणजे काय? तुम्ही सांगा ना मग, यू टेल मी की कॅन यू से इंस्टीट्यूशन इज मोर ऑफ अ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मॅट? आता फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का मैं बताता हूँ आपको मीनिंग, सो यू कैन चेक दैट। सिंपल, कि ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? किसी, यू हैव कम हियर, ओके, जैसे कि ये अभी क्लासरूम है हमारा, तो आप आ रहे हो, आप साइन कर रहे हो अटेंडेंस पे, देन यू आर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम, यू आर सिटिंग, you have your own notes, you are opening the notes and you are referring the notes, and then we are discussing. This is what organized, okay? अनऑर्गेनाइज्ड क्या हो सकता है? कि अनऑर्गेनाइज्ड इज कि हम कहाँ किसी होटल में मिल रहे हैं, वी आर जस्ट मेकिंग अ ग्रुप एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग सोशियोलॉजी, ओके, सो दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड थिंग। समझ में आ रही है बात? हाँ, सो नाउ यू ओनली टेल मी कि स्ट्रक्चर विल बी द ऑर्गेनाइज्ड थिंग और इंस्टीट्यूशन विल बी द ऑर्गेनाइज्ड वाला थिंग। हाँ, हाँ, रोल कहाँ फिक्स होते हैं?
स्ट्रक्चर्स में फिक्स होते हैं, राइट? तो सब कुछ अगर स्ट्रक्चर में फिक्स है तो ऑब्वियसली स्ट्रक्चर विल बी मोर ऑर्गनाइज्ड. ओके, स्ट्रक्चर म्हणून पहिले ऑर्गनाइजचा अर्थ काय ते तर समजलं पाहिजे ना, राइट? तो स्ट्रक्चर विल बी मोर ऑर्गनाइज्ड than institution, obviously. yes or no, right? Because जैसे कि मैंने कहा, रिलेशनशिप, if the roles are fixed then the relationships are fixed. yes or no? And norms are also fixed. ठीक है, यही दिया है, फैमिली द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियर एक्सटेंडेड, जो कोई भी हो, इनके नॉर्म्स फिक्स्ड है, इनके रोल्स फिक्स्ड है, रिलेशनशिप फिक्स्ड है. तो बस ये तीन वर्ड याद रखने हैं. when there is a discussion about structure you have to understood remember only these three words. what? relationship, roles and norms are fixed. ठीक है, that are structures. ठीक है, तो स्ट्रक्चर का डिस्कशन है तो कौन डिस्कस करेगा स्ट्रक्चर को? Why? Because he is a structural functionalist. Okay, because every structure will have a function. Yes or no? फंक्शनलिस्ट कल बताया ना, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव. हाँ, ऑनलाइन नाही बघितलं का? बर कल बताया था. व्हाट डू यू मीन बाय, कोई बताओ चलो. फंक्शनलिस्ट, व्हाट इज फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव? सिंपल, दे, the people, functionalists are the people who study what? The functions of the, हाँ, अभी functions of the social structures. ठीक है, they study the function of the social structure. ठीक है, राइट? दोज आर फंक्शनलिस्ट. तो फिर तालकोट पार्सन है एग्जांपल, कार्ल मार्क्स भी यहाँ पे एग्जांपल है, बिकॉज कार्ल मार्क्स आल्सो डिस्कस द सोशल स्ट्रक्चर. सोशल स्ट्रक्चर मींस इकोनॉमी इज अ सोशल स्ट्रक्चर, फैमिली इज अ सोशल स्ट्रक्चर. तो अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि कार्ल मार्क्स इज आल्सो study the social structure. That will discuss how he study the social structure in the later on part. ठीक है, समझ गया स्ट्रक्चर नाउ? ठीक है सर, अभी स्ट्रक्चर तो समझ में आ गया. व्हाट इज सोशल सिस्टम? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज सोशल सिस्टम? हाँ, तो इसमें क्या डिफरेंस होगा अभी? व्हेन आई से, सी, अभी ऐसे कह सकते हैं कि सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है, हाँ हाँ, काय माहिती आहे, चुकलं तरी चालेल ना, काही प्रॉब्लेम नाही, बोला. कारण आता हा शब्द, दिस वर्ड्स कॉल्ड सिस्टम, वी यूज इट ऑफन. yes or no? So you tell me what is system, what it could be. है? All structure and institution included. इस डायग्राम में कहाँ ऐड करना है सिस्टम को? सी, when I say there are multiple institutions form a system. Exactly. You have one company. Let's take an example of company. ठीक है? हाँ, डाउट एक, हाँ, सांगतो सांगतो. नाही, कास्ट सिस्टम अगेन इज एन इन्स्टिट्यूशन. ओके, सांगतो, क्लियर होईल तुम्हाला सगळ्यांना. व्हाट इज सोशल सिस्टम? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कंपनी. ठीक है, देयर इज वन कंपनी. ठीक है, कंपनी हैज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. यस और नो? एचआर डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट. ओके, और ऑपरेशन डिपार्टमेंट. तो ये चार डिपार्टमेंट हो गए कंपनी के. तो ये जो चार डिपार्टमेंट होते हैं, कंपनी हैज अ सर्टेन स्ट्रक्चर. यस और नो? राइट, तो वो स्ट्रक्चर हो गया, राइट? और ये जो डिपार्टमेंट है, these डिपार्टमेंट्स आर what? Institutions, right? Okay, and when these departments come together and make one formula, they make one system. Yes or no? And on that system that company runs. Yes or no? Okay, so the system is nothing but group of institutions who has interconnection in them. Okay, yes or no?
that becomes your social system. हा, व्हेरी गुड, चालेल, काहीच प्रॉब्लेम नाही. परफेक्ट एक्झाम्पल, व्हेरियस कॉलेजेस अंडर वन युनिव्हर्सिटी. Yes or no? So now if we make a group of some colleges, right? Supposedly Pune University के अंडर 400 plus colleges हैं, right? So if we make a group of 100 colleges each, तो we made 4 groups. तो ये 4 groups क्या हो गए? Those are institutions. 4 groups are 4 institutions. Yes or no? And these 4 institutions will have one group which is called system. Okay, they are running with the specific system, no? So that is university, that is a system. Okay. हम्म. कसं घ्यायचं एक्झाम्पल, तुम्ही एक्सप्लेन करा. येस प्रेरणा, वी कॅन टेक दॅट. Okay, we'll discuss that also. Political party is what? That will be a institution. ठीक है, one political party is one institution. ठीक है, right? Then two or let's say 3 parties win the election, they form a coalition government and they come into the power. ठीक है, come into the power and they form the coalition government. What they have made? They have formed the system. Yes or no? And they are running the government under the structure called parliament. Okay, right? And to that system you can give the name as a democratic system. Okay, right? ये भी कह सकते हो example. Yes or no? Right? So you can take this example as well. Write down this example in your own terms. अभी वापस repeat नहीं करूंगा मैं. ठीक है? Different political parties are acting as a institutions, है ना? And when 2 or more political parties wins the election and forms the coalition, they form one system. Okay, understood, online student? They form one system and they runs the government under the structure called parliament. Understood? Under the structure called parliament. त्याच्यात फक्त एवढंच समजून घ्या, सिस्टीम काय आहे आणि स्ट्रक्चर काय आहे आणि इन्स्टिट्यूट काय. हा, घेऊ शकता, काहीच प्रॉब्लेम. समजलं तुम्हाला आता, है ना? Right? So understood. Now you can have multiple examples of it, right? Social structure, social system, social institution, right? Understood? ये definition समझना बहुत जरूरी है. So basically see, वही दिया है social system में. These are what? Social system is nothing but a complex network of interrelated social structures, है ना? Or institutions, or roles and norms. तो बाकी के तो आएंगे ही ना. Why? Because norms, roles and institution are the part of system. इसीलिए तो ये डायग्राम जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है. ओके, व्हेन यू से दिस इज योर सोशल सिस्टम, दिस इज योर सोशल सिस्टम, तो एंड दीज आर योर इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन. तो ऑब्वियसली यहाँ पे रोल्स नॉर्म्स तो आएंगे ही ना. यस और नो? तो डेफिनेशन लिखते हुए कंफ्यूज नहीं होना है कि दीज, सर हाउ कम दीज इंक्लूड नॉर्म्स एंड रोल्स, क्योंकि आपने फिर तो ऊपर स्ट्रक्चर में भी नॉर्म्स एंड रोल्स बताए. तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी होगा ना नॉर्म्स एंड रोल्स, क्योंकि नॉर्म्स एंड रोल्स इज अ बेसिक फेनोमेना. यस और नो? तो अभी कैसे करते हैं शुरुआत?
कोर से जाकर पेरीफेरी तक जाते हैं, मैक्रो टू माइक्रो, या फिर उल्टा माइक्रो टू मैक्रो। ठीक है, मैक्रो से शुरू करते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, वी हैव इंडिविजुअल, देन वी हैव अ मल्टीपल इंडिविजुअल फॉर्मिंग द ग्रुप, ओके, दैट इज सोसाइटल ग्रुप। ये सुनो, तो वो ग्रुप हो गया। ग्रुप के बाद आ गया आपका institution, correct? Okay, institution has what again? Everything, norms, values, relations, everything, right? institution, institution के बाद आ गया system, system, multiple systems becomes your structure finally, yes or no, right? तो system होगा, ये डायग्राम भूलना नहीं है, system होगा, और system के बाद होगा आपका final structure, yes or no? बिकॉज स्ट्रक्चर में मैंने क्या कहा, योर वैल्यू योर नॉर्म्स, रोल्स एंड रिलेशंस आर फिक्स्ड, ओके। तो आप कोई से भी सिस्टम का पार्ट हो, वॉट एवर रोल्स, रोल्स आर फिक्स्ड। फॉर एग्जाम्पल, वही पार्लियामेंट का एग्जाम्पल ना, पार्लियामेंट इज अ स्ट्रक्चर। व्हेन आई से पार्लियामेंट इज अ स्ट्रक्चर, तो आप कौन से पार्टी के, उससे फर्क पड़ता है क्या? आपका रोल तो फिक्स होगा ना। इफ यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, योर रोल विल बी फिक्स्ड, yes or no? So primarily will be member of parliament, so whatever norms are there for the member of parliament, all the norms will be applicable to all the member of parliament, irrespective of parties, exactly, yes or no? ऐसे होगा क्या कि कांग्रेस पार्टी का है या फिर रूलिंग पार्टी का है तो उसे अलग नॉर्म्स है, और अपोजिशन पार्टी का है तो उसे अलग नॉर्म्स है? नो, ऐसे नहीं होगा ना। सो इसीलिए कहा कि स्ट्रक्चर हैज द फिक्स्ड नॉर्म्स एंड रूल्स एंड रिलेशनशिप, यस और नो, राइट? तो स्ट्रक्चर सबसे ऊपर, उसके बाद सिस्टम, उसके बाद इंस्टीट्यूशन, उसके बाद ग्रुप, और उसके बाद इंडिविजुअल। सो दिस इज द एंटायर फेनोमेना ऑफ सोसाइटी, ओके, अंडरस्टूड? क्लियर है? एनी डाउट? इसीलिए एग्जांपल यहाँ पे ये लिया है, देखो सिस्टम का, कि सिस्टम यू हैव मल्टीपल इंस्टीट्यूशन, देयरफॉर अगर, ठीक है अभी एग्जांपल बहुत हो गए, ये एग्जांपल लेके वापस कंफ्यूजन क्यों करना है ना। हेल्थ केयर सिस्टम, राइट? हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब क्या है? मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस यू हैव इन दैट हेल्थ केयर सिस्टम, यानी एक मेडिकल भी हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है, एक पैथोलॉजी लैब वाला भी हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है, एक डॉक्टर भी हेल्थ केयर सिस्टम का पार्ट है, बट दीज ऑल आर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, यस और नो, राइट? लेकिन देयर इज अ कॉमन थ्रेड हु कनेक्ट देम ऑल, यस और नो, राइट? दैट इज पेशेंट, है ना? तो दैट इज द हेल्थ केयर सिस्टम, इज सिस्टम, ठीक है। सिस्टम पे डिस्कशन किसने किया है बेसिकली? तो सिस्टम जब डिस्कस करेंगे तो टालकोट पार्सन का डिस्कशन है मेनली सिस्टम्स पे, सोशल सिस्टम्स पे, ठीक है। विल डिस्कस अबाउट टालकोट पार्सन सोशल सिस्टम आफ्टरवर्ड्स। यहाँ पे जो थिंकर्स है वो छोड़ दीजिए, ज्यादा डिस्कशन इसकी करने की जरूरत अभी नहीं है। अंडरस्टूड? सिस्टम एवरीथिंग, हाँ। नाउ द नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज योर सोशल ग्रुप्स। व्हाट इज दैट सोशल ग्रुप? सोशल ग्रुप तो ग्रुप हो गया वो डिस्कस करके, multiple individual comes together and form the group, that is a social group. Then why the word, that is a group, but why the word social is there? What is the significance of that word social? सोसाइटी में आ रहे हैं तो सोसाइटी में ही आएंगे ना। हाँ, नहीं, we can say those are groups, but those are institutions. Social group when people comes together with a certain purpose, hmm? Common goals, we can say common goals, collection of individual who interact with one another, share common goals or interest, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कीवर्ड यहाँ पे, when they share common goals or interest, then that becomes your what? Social groups. or otherwise it is a, then what is the difference between, अभी और एक टर्मिनोलॉजी वहां पे डिस्कस करनी है, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं आप लोगों को, दैट इज कम्युनिटी,
व्हाट इज कम्युनिटी, वेयर दिस कम्युनिटी स्टैंड, वो कहाँ घुसाएंगे कम्युनिटी अभी इस सारे डिस्कशन में? हाँ तो डिफरेंट ग्रुप्स कम्स टुगेदर फॉर्म अ कम्युनिटी, ऐसा नहीं। हम्म, आगे हैं, आगे डिस्कस करते हैं, अभी के लिए अंडरस्टूड व्हाट इज सोशल ग्रुप्स। तो सोशल ग्रुप, तो सोशल ग्रुप्स का जब डिस्कशन होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे एग्जांपल्स है, फ्रेंडशिप सर्कल, प्रोफेशनल एसोसिएशंस, ये सोशल ग्रुप्स होते हैं आपके। तो ये याद रखिए कि व्हेन वी हैव अ कॉमन गोल्स एंड इंटरेस्ट देन वी से इट इज अ सोशल ग्रुप बेसिकली। ठीक है, दैट्स इट। सोशल ग्रुप्स, जॉर्ज सिमल्स है जो हाउ द सोशल ग्रुप फैसिलिटेट द सोशल इंटरेक्शन एंड फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटीज थ्रू पैटर्न ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, ये डिस्कशन करते हैं। इनका डिस्कशन अभी नहीं करना है। जॉर्ज सिमल्स इंपॉर्टेंट थिंकर है हमारे लिए, ये हम डिस्कशन करेंगे जब हम यूनिट 5 डिस्कस करेंगे। ओके, स्ट्रैटिफिकेशन जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें हमें ये वर्ड डिस्कस करना है ना, एक्सक्लूजन, डिप्रीवेशन, ये सुनो, राइट? तो वो जब डिस्कशन करेंगे तब जॉर्ज सिमल डिस्कशन करेंगे, क्योंकि जॉर्ज सिमल क्या डिस्कस करते हैं कि व्हेन यू फॉर्म अ सोशल ग्रुप व्हाट आर द पर्सनल traits of individual so that that group exclude that individual from the social group। ऐसा होता है ना, ये सुनो, ये अपना अपना ग्रुप है उससे मत बुलाओ यार, वो बहुत बोर करता है, ये सुनो, right? So what are the personal trait of that person that person is not included in your group? ओके, सो वो डिप्रीवेशन डिस्कस करने के लिए आपको सोशल ग्रुप समझ में आना चाहिए। यस और नो, अंडरस्टूड? तो वो जब जॉर्ज सिमल डिस्कस करेंगे उस वक्त ये डिस्कशन हम लोग करेंगे। समझ में आया सोशल ग्रुप? यस और नो, अंडरस्टूड? सोशल ग्रुप सिंपल है डेफिनेशन या फिर डिस्कशन। देन सोशल ग्रुप्स के यहाँ पे टाइप्स दिए हैं आपको कुछ, वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी डिस्कशन करेंगे। प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आखिर वाला रेफरेंस ग्रुप। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी ग्रुप? क्या होता है? गेस फ्रॉम द नेम ना, व्हाट इट कुड बी। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, करेक्ट, स्मॉल नंबर ऑफ पीपल, जिसे हम कहते हैं ना कोर ग्रुप। ये सुनो, सारे अभी ये वो पार्लियामेंट का एग्जांपल है तो वही कंटिन्यू करते हैं, राइट? हाँ एग्जैक्टली, कैबिनेट मिनिस्टर जो है दैट इज योर प्राइमरी ग्रुप। बाद में जो सारे मिनिस्टर जो है वो सेकेंडरी ग्रुप। ओके, ये सुनो, और जो बचे कुछ एमपीज हैं जिनको मिनिस्ट्री नहीं मिली है लेकिन दे आर अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, नहीं नहीं कमिटीज वगैरह, दे आर अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, यस और नो, राइट? तो दे बिकम्स व्हाट, reference group। okay, for them this cabinet group act as a reference group, understood? So primary group, cabinet minister, because they are small in numbers, okay, they have a close tight relationship, small, intimate, characterized by close personal relationship among the members, yes or no? So that is a primary group basically। secondary group, so family is a primary group, close friends। secondary group, large group, more impersonal, often based on specific task, so that becomes your secondary group। ठीक है, तो अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्ट्री वाले मिनिस्टर्स ऑल आर सेकेंडरी ग्रुप। ठीक है, एंड देन जैसे कि यहाँ पे दिया है वर्क प्लेस टीम, स्पोर्ट्स टीम। देन व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप? रेफरेंस ग्रुप इज कि जो बाकी के मिनिस्टर, बाकी के सिर्फ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर को देख के कहते हैं कि यार पिछले अगले टर्म में मुझे भी कैबिनेट मिनिस्टर बनना है, सो फॉर दैट एमपी दैट कैबिनेट मिनिस्टर वाला ग्रुप एक्ट एज अ रेफरेंस ग्रुप, ही इज टेकिंग द रेफरेंस ऑफ इट, नो? यस और नो? वो अगर हेवी हो रहा है एग्जांपल तो आपका एग्जांपल सिंपल। यू वांट टू बिकम एन आईएएस, आईपीएस, डेप्यूटी कलेक्टर वगैरह जो कुछ भी आपको बनना है, क्लास 1 ऑफिसर, so you must have seen some of the people who has already become a class 1 officer, yes or no, right? So you admire those people, yes or no? So for you that is a reference group, yes or no? आर के मटन जब डिस्कस करेंगे
उस वक्त डिस्कशन करना है रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर। ओके, और फिर रेफरेंस ग्रुप में डिस्कशन होता है कि सम पीपल आर द मेंबर ग्रुप वाले पीपल, कि दोज हु आर अ पार्ट ऑफ दैट रेफरेंस ग्रुप दे बिकम द मेंबर ग्रुप, एंड सम पीपल हु जस्ट गिव द रेफरेंस, सो दोज आर नॉन मेंबर ग्रुप वाला पीपल। तो वो डिस्कशन करेंगे आर के मर्टन के वक्त, रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, राइट। अभी के लिए रेफरेंस ग्रुप समझ में आ रहा है, व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप? हाँ, the group we take the reference of, that is reference group, simple है ना, in a simple terminology. So this is your reference group. Okay sir, easy है ना? Now अभी और एक terminology confuse करने के लिए, then what is this? Association, social association, क्योंकि मीनिंग तो सेम ही है सर, कि social association is term used in a sociology to describe a form of social interaction, relationship between individual and groups within a society. तो फिर क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन ग्रुप्स एंड एसोसिएशन, difference between institution and association, difference between structure and association. What is the difference? Where this thing stand in our diagram? हमारी जो डायग्राम है यहाँ पे कहाँ लिखूं मैं, कहाँ डालूं इसको, एसोसिएशन को? इंस्टीट्यूशन से ऊपर, नीचे, इंस्टीट्यूशन से नीचे। तो इंस्टीट्यूशन से नीचे तो ग्रुप आ गया ना, ग्रुपच्या वर शेजारी म्हणजे काय असतं? Cooperative is a social, cooperative is a group, but that will tell you. We can say it is a social group and not the institution. प्रेरणा, ठीक है? हाँ, प्रोफेशनल पीपल, हाँ, नाव तर ऐकली असतील ना, XYZ असोसिएशन ऐकलंय का नाव? एक्झाम्पल सांगा ना, लेट्स टेक अँड डिस्कस फ्रॉम द एक्झाम्पल्स. हॅव यू हर्ड अबाउट एनी असोसिएशन? चार्टर्ड अकाउंटंट्स असोसिएशन, मेडिकल असोसिएशन, बरोबर, इंडियन मेडिकल काउन्सिल, राईट, मेडिकल असोसिएशन. देन इंजिनियर्सला कोणी विचारत नाही, इंजिनियर्स असोसिएशन काय नसते, बरोबर. अरे लॉयर्स असोसिएशन चालेल, बार असोसिएशन, येस और नो? नाउ टेल मी देन. एक्झाम्पल्स झाले, मग आता डिफरन्स सांगा. अरे ते झालं, पण त्याचा अर्थ काय? रीड युअर नोट. काय म्हटलंय? असोसिएशन इज form of social interaction and relationship between individual and group. It emphasizes voluntary and informal nature of interaction. This is important. Whatever relation you have, whatever interaction you have, that is voluntary and informal. Yes or no? When you form institution out of association, it does not remain voluntary. एसोसिएशन के बाद जब हम लोग, द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एसोसिएशन वुड बी योर इंस्टीट्यूशन. ठीक है? व्हेन, अभी क्या है बार एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? किसी को पता है? ये जो लॉयर्स की एसोसिएशन होती है, बार एसोसिएशन, क्या होता है? इन्स्टिट्यूशन कशाला, मग असोसिएशन का बरं म्हणतोय त्याला? शब्द असोसिएशन का बरं म्हटलाय? हाँ, मग दैट इज दी, बेसिकली अगर ग्रुप के वर्ड में बोलना हो तो दैट इज अ इनफॉर्मल ग्रुप बेसिकली. ठीक है? वेयर इंटरैक्शन इज वॉलेंटरी. यस और नो? दैट इज द इनफॉर्मल. लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप ये वर्ड लिखना नहीं है वहां पे, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ठीक है, राइट?
क्योंकि फिर फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रुप वो सोशल ग्रुप्स में चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ इनफॉर्मल ग्रुप वेयर यू हैव द वॉलेंटरी फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन। मैं बार एसोसिएशन का, अगर यू टेल मी, is it compulsion on every lawyer in the country that he or she should be the member of bar association? No. तो आ गया ना वॉलेंटरी नेचर यहाँ पे, यस और नो, अंडरस्टूड। तो आ गया यहाँ पे वॉलेंटरी। लेकिन अगर वो इंस्टीट्यूशंस होगा, ओके, इफ दैट वाज एन इंस्टीट्यूशन, तो उसमें आपके रोल डिफाइन होंगे। एसोसिएशन में रोल डिफाइन नहीं होते हैं, आइदर यू आर मेंबर और नॉट अ मेंबर, सिंपल, यस और नो। जब इंस्टीट्यूशन आता है तो रोल डिफाइन होगा, रोल के बाद हायरार्की डिफाइन होगी। नाही नाही, इनइक्वालिटी सोडून द्या, हायरार्की आली की इनइक्वालिटी येते, पण इनइक्वालिटी निगेटिव्ह टर्म आहे, ठीक आहे, ती नाही बोलायची आपल्याला, कारण हायरार्की पॉझिटिव्ह साठी पण असेल ना। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो फर्स्ट सी, व्हेन पीपल कम टुगेदर विथ अ सर्टेन पर्पस दे फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। व्हेन, ओके, अभी ग्रुप फॉर्म हो गया, लेकिन ग्रुप फॉर्म होने के बाद नाउ विल डिसाइड, चले हमारा एग्जांपल लेते हैं, सोशियोलॉजी बैच, ठीक है। व्हाट यू आर डूइंग हियर, सो यू आर स्टडी कमिंग हियर फॉर द सोशियोलॉजी बैच। तो आप हो गए स्टूडेंट, मैं हो गया टीचर, हमारा रोल डिफाइन है, ठीक है, रोल डिफाइन है, लेकिन ये वॉलेंटरी है ना, यस और नो। सो दिस बिकम्स आवर एसोसिएशन, वी आर associated with each other, yes or no, so this becomes our association. But when I say कि अरे अभी आपको क्या करना है, मेंबरशिप लेनी है, okay, you have to pay certain amount to become the member, so it doesn't remain association now, then it becomes your institution, yes or no, because then your role will be defined, it is not voluntary, पैसे देने के बाद ही मेंबर बन रहे हो ना, yes or no, so it is not voluntary in a way, and if you are paying a money then you will expect something, yes or no, तो एक्सपेक्टेशन आ गई। जब वॉलेंटरी था उस वक्त एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, जब ऐसे ही हम लोग गार्डन में मिल रहे हैं और सोशियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं तो वी फॉर्म एसोसिएशन, यस और नो। बट व्हेन वी आर मीटिंग इन अ particular place every day in a structured manner on a specific time and discussing a specific things with the subject, then it is a institution, yes or no। उस वक्त रोल डिफाइन हो जाएंगे आपके, यस और नो। उस वक्त नॉर्म्स डिफाइन हो जाएंगे कि अरे सिर्फ मैं ही बात करूंगा 2 घंटे में, आपको नहीं बात करनी है, वट एवर डाउट यू हैव यू विल आस्क इट आफ्टर द सेशन, यस और नो, राइट। सो दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूशन, दिस इज व्हाट इंस्टीट्यूशन, यस और नो, राइट। एंड देन अभी ये इंस्टीट्यूशन हो गया, आता इकडे बघा काय ते वेगळं आहे का, तो माणूसच आहे ना, राइट। मी एवढं सांगतोय महत्वाचं, इंस्टीट्यूशन हो गया, अभी कहाँ जाएंगे, ऊपर, और ऊपर कहाँ जाएंगे, हाँ। सो व्हेन देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, ओके, सो मैंने अभी कहा कि हमारा इंस्टीट्यूशन हो गया, ओके, व्हाई, बिकॉज यू हैव टेकन एन एडमिशन हियर, यस और नो, आपने एडमिशन ले लिया, इट बिकम्स द इंस्टीट्यूशन। नाउ द थिंग इज कि when this institution get connected with other institution of competitive examination, yes or no, and then we form a what, a system, yes or no, a system of competitive examination। जैसे कि मैंने कहा कि you are coming here for the sociology optional, okay, तो आपने कहा कि सर okay we are paying the money, we what we understood whatever you teach us, तो मैं, मुझे अच्छा लगता है, मैं पैसे भरती हूँ, ओके, तो आपने पैसे पे कर दिए और हमारा डिस्कशन खत्म हो गया 3-4 महीने, ओके। नाउ यू आर आस्किंग फॉर मोर, यू से कि सर अभी सोशियोलॉजी तो हो गया खत्म, नाउ टेल मी वेयर आई कैन डू द एथिक्स वाला पार्ट, okay, so I'll tell you go to that institution, okay, because we have the affiliation, so then we form the system to cover the entire syllabus of UPSC, yes or no, are you understanding it, so that becomes our system, huh? But this system is run by certain rules, expectations and regulations, so that is your structure, yes or no, समझ में आ रही है बात,
So association is the what? Lowest organization, lowest form of organization. Understood? Which is completely voluntary. तो बस ये याद रखिए, जब हम लोग गार्डन में डिस्कशन कर रहे हैं दैट इज आवर एसोसिएशन, जब हम लोग क्लासरूम में आ गए आपने फीस पेड कर दी तो वो हो गया इंस्टीट्यूशन। यस और नो? अलग अलग इंस्टीट्यूशन मिलके एक बनाएंगे सिस्टम। ओके, और वो सिस्टम क्या करेगी? कुछ स्ट्रक्चर्ड मैनर में रन करेगी, सो दैट बिकम्स योर स्ट्रक्चर, है ना? क्योंकि वन स्ट्रक्चर कैन इंक्लूड मल्टीपल सिस्टम्स। यस और नो? जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इज अ सिस्टम। Yes or no? And competitive examination is a structure. Competitive examination में UPSC is one system, MPSC is second system, banking is third system. Yes or no? Railway SSC is fourth system. Yes or no? और उसमें अलग अलग इंस्टीट्यूशंस। अंडरस्टूड? ये भी ले सकते हो एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स है। क्लियर? राइट? डन? राइट डाउन द एग्जांपल्स, घर जाके याद नहीं रहेगा ये। ओके, डेफिनेटली भूल जाओगे, देयर इज नो डाउट इन दैट। Okay, understood, Prerna? What is cooperatives? It comes under the groups, basically. जो मैंने अभी एग्जांपल बताया वो एग्जांपल लिखिए। फर्स्ट यू विल फॉर्म द एसोसिएशन। अभी इंडिविजुअल से जाना है क्या? चलो इंडिविजुअल से जाते हैं। इंडिविजुअल, हाँ, देन अभी बताओ, यू टेल मी। हाँ, ओके, ग्रुप, हाँ ग्रुप, यू आर सेइंग ग्रुप, ओके ठीक है, you are saying group because then we'll have to come up with this terminology also, community। हाँ, community बचा है अभी तक, ठीक है। अभी के लिए individual, then you have a group, then you have a association, yes, association, then you have a institution, then you have a system, and then you have a structure। correct? okay, अभी के लिए इतना है। क्लियर? पक्का? हाँ। तो अभी ये बताइए, कम्युनिटी कहाँ से आएगा? अभी ये कैरेक्टरिस्टिक भी याद रखने हैं, व्हेन वी से एसोसिएशन वॉलेंटरी। ओके, ये याद रखना है, बस वो स्ट्रक्चर नहीं याद रखना है, वो स्ट्रक्चर से लिखने को कुछ नहीं होगा, वो समझने के लिए है, लिखने के लिए यही लिखना होगा। नाउ व्हाट इज द व्हाट इज कम्युनिटी बेसिकली? यहाँ पे दिया है आपको कम्युनिटी। सर लेट्स डिफाइन कम्युनिटी, व्हाट डू मीन बाय कम्युनिटी? ते कुणाकडे देशीचं देऊन तरी मग व्हॉट इज कम्युनिटी? तुमच्या जवळच ठेवा, जेव्हा लागेल तेव्हा करत जा ऑपरेट। लोकेशन, ओके ओके, समजलं मला। यू आर सेइंग कि कम्युनिटी इज व्हाट? टेरिटरी स्पेसिफिक और लोकेशन स्पेसिफिक एंटिटी, दिस इज व्हाट यू वांट टू से, राइट? कम्युनिटी इज अ लोकेशन स्पेसिफिक और टेरिटरी स्पेसिफिक एंटिटी और कन्सेप्ट। हा म्हणजे तेच झालं ना। मग मग असं झालं का की मग ओनली मारवा रीजन मारवाड़ी पीपल आर देयर, तो महाराष्ट्र रीजन मराठी पीपल विल बी देयर, बट मराठी इंक्लूड एवरीवन, मारवाड़ी गुजराती एवरीवन। यस और नो? तो ये गलत हो गया ना फिर कम्युनिटी, राइट? टेरिटरी, हाँ, territory, religion doesn't define your aspect of community. मग कास्ट इज वो म्हणजे एक पर्टिक्युलर एक्स कास्ट झाली तर ती एक कम्युनिटी झाली का? मग असे क्रायटेरियाज काय लावणार? म्हणजे आता ते त्याने जो सांगितला टेरिटरी, तुम्ही कास्ट सांगतायत फक्त, मग असे क्रायटेरियाज किती असतील कम्युनिटीचे? सेन्स ऑफ बिलोंगिंग, ठीक है? when group of people comes together and they have the sense of belonging, okay, इसीलिए वहां पे लिखा है ना what? we feeling, okay, when we have a we feeling,
आज पुरतं बसा, ते त्याचे टेम्परेचर वगैरे सगळे उद्या सेट करतो व्यवस्थित, म्हणजे एकदम पण गार होणार नाही आणि एकदमही गरम होणार नाही. वी फिलिंग. आता वी फिलिंग काय असेल? व्हॉट इज दिस वी फिलिंग? When people comes together, share the common feeling, na? Yes or no? And that common feeling may vary according to the groups and different groups. Yes or no? Feeling of patriotism. Yes or no? When people come together for a specific time period. 15 ऑगस्टला जेव्हा आम्ही जमतोय सर्व एका ठिकाणी, we have that we feeling. Yes or no? But for 2 hours only. Yes or no? So this community phenomena is momentarily, is a temporary phenomena. Are you getting it? Yes or no? Community refers to the group of people, okay, who shares common values, interest, norms, and often sense of belonging and solidarity. ठीक है? कलेक्टिवनेस एम्फोसाइज करता है. तो आपने जो एग्जांपल बताया अभी, टेरिटरी कैन एम्फोसाइज द कलेक्टिवनेस, कास्ट कैन एम्फोसाइज द कलेक्टिवनेस, रिलीजन कैन एम्फोसाइज द कलेक्टिवनेस. हाँ, that can be one of the parameter, but the core definition is you should have that we feeling, then only people will come together. Yes or no? That is community. तो कम्युनिटी तो समझ में आ गया. Yes or no? तो अभी हमारे यहाँ पे कहाँ लगाएंगे कम्युनिटी को? कम्युनिटी को हमारे डायग्राम में लगाने की जरूरत नहीं है हमें. Why? We don't have to fill in community here. Why? Because it is a temporary phenomena ना. We feeling आज जो है, suppose let's take an example. अभी इन्होंने जो बताया parameters, I am belonging from X religion, okay, but उस religion में 10 caste है, okay, so when there is a need कि सर ये रिलीजन वाले लोग एक जगह आ जाइए, तो तब मैं जाऊंगा, देन विल फॉर्म अ कम्युनिटी. बट जब उस रिलीजन में पता चलेगा कि 10 कास्ट हैं, तो 10 कास्ट के लोगों में 10 ग्रुप बनाइए, तो फिर मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा ना. आर यू गेटिंग इट? तो जैसे जैसे आपके क्राइटेरिया बदलेंगे, वैसे वैसे कम्युनिटीज बदलती जाएगी, वैसे वैसे वी फीलिंग चेंज होती जाएगी. यस और नो? अंडरस्टूड? राइट? तो इसीलिए कम्युनिटी यहां घुसाने की जरूरत है ही नहीं. ठीक है? बिकॉज कम्युनिटी इज अ टेम्पररी फेनोमेना, इट इज नॉट अ परमानेंट थिंग, राइट? सो वी डोंट इंसर्ट कम्युनिटी हियर. करेक्ट महिंद्रा, very good. Please participate in the discussion, other people. Understood what is community? तो कम्युनिटी बस इतना ही याद रखो कि कम्युनिटी इज अ वी फीलिंग बेसिकली, दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है. हाँ, टेम्पररी तो है ही. नेबरहुड कम्युनिटीज हैं, फिर रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, है ना? रिलीजियस कम्युनिटीज कहते हैं हम लोग, कास्टिस्ट कम्युनिटीज कहते हैं. लेकिन अभी रिलीजियस एसोसिएशंस होती है क्या? रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होती है क्या? रिलीजियस स्ट्रक्चर्स होते हैं क्या? रिलीजन इटसेल्फ इज अ स्ट्रक्चर. ओके, सो अभी आई होप यू अंडरस्टूड कि रिलीजन को कब मैं स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, रिलीजन को कब मैं इंस्टीट्यूशन कह रहा हूँ, रिलीजन को कब मैं एसोसिएशन कह रहा हूँ. When I will say religion as a structure and when I will say religion as an institution, tell me the difference. और फैमिली, रिलीजन अगर कंफ्यूजिंग है तो फैमिली. When I will say कि family is a structure and family as an institution. स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन ली थी हम लोगों ने? देखो नोट्स में, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. ये याद रखो ना, एवरीथिंग इज फिक्स्ड, दैट इज स्ट्रक्चर. ओके, राइट? एंड स्ट्रक्चर में इंक्लूड मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस, नो?
यस और नो? तो अगर फैमिली की बात करें तो ये फादर और सन का याद रखो ना, एग्जांपल जो मैंने कहा था अभी, कि फैमिली नंबर 1, फैमिली नंबर 2, यस और नो, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज बट द रोल्स आर फिक्स्ड, फादर एंड सन, यस और नो? तो अंडरस्टूड व्हेन वी आर यूजिंग फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन एंड फैमिली एज ए स्ट्रक्चर, क्योंकि आगे जाके थिंकर्स जब डिस्कशन करेंगे तो बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन होगा कि सर डर्कहिम जो सोशल फैक्ट के बारे में डिस्कस करता है वही डिस्कशन मैक्स वेबर सोशल एक्शंस के बारे में डिस्कशन करता है, वही डिस्कशन फिर मैक्स वेबर जो सोशल एक्शन के बारे में डिस्कस करता है वही डिस्कशन टालकोट पार्सन सोशल सिस्टम के बारे में डिस्कशन करता है। सो सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री टर्म्स? देयर इज अ डिफरेंस। तो इसीलिए मैं ज्यादा एम्फोसाइज कर रहा हूँ इन चीजों पे। समझ में आ रहा है? यस और नो? घर जाके वापस पढ़ना है ये, है ना, रिवाइज करना है, जो जो एग्जांपल डिस्कस किए हैं वो देखने हैं। ये एग्जांपल नहीं समझ में आया, थोड़ा चैट जीपीटी करो और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, है ना। टेल मी द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर, सिस्टम, एसोसिएशन, एवरीथिंग। ठीक है? हाँ, कसं तुम्ही सांगा. I am belonging from a particular X religion. ठीक है, right? If and then I perform ABC rituals for a religion. ठीक है, कोई अगर रिलीजियस एक्टिविटी करनी है, कोई रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं, तो मैं, जैसे कि अभी आपने ये देखा होगा, क्या होता है, दिवाली फेस्टिवल, ओके, सपोज वी डू द व्हाट लक्ष्मी पूजन इन दिवाली फेस्टिवल, है ना, तो एवरीबडी हैज द डिफरेंट वे ऑफ डूइंग दैट पूजा, so that is institutions, but everybody is doing the puja structure, okay, it is like that. Clear? ब्रेनस्टॉर्म करा थोडस घरी गेल्यावर, म्हणजे मग अजून समजेल, अजून चांगलं लक्षात राहील. अंडरस्टूड? आई थिंक दीज मेनी एग्जांपल्स आर डन. ओके, बस इतना ही है इसमें, ज्यादा और नहीं जाएंगे डिटेल. ठीक है? नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, सम डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज. अभी जैसे स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर ये वो सारी डिस्कशन किया, तो अभी एक वर्ड को पकड़ते हैं और उसमें भी ज्यादा डिटेल जाते हैं. कल्चर. वी टेक द वर्ड कॉल्ड कल्चर. यही है ना नेक्स्ट पेज? हाँ, है ना? हाँ. ये हो गया. ये जेमाइन शाफ्ट, जेसेल शाफ्ट, ये बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग. फर्डिनांड टोनिन्स का ये कंसेप्ट है, ये हमें डिस्कशन करनी है. कम्युनिटी और सोसाइटी, ये पेपर 1 यूनिट 2 में डिस्कशन करेंगे. ठीक है? जेमाइन शाफ्ट, जेसेल शाफ्ट क्या होता है, और डर्किम का भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे जब डर्किम डिस्कशन करेंगे. ठीक है, राइट? नाउ वी हैव द term called culture. Tell me what is culture basically. First culture, then cultural lag. What is culture? हाँ, हाँ, ठीक है. Follow culture from the sociological perspective. Obviously, culture is a sociological perspective, compasses shared belief, value, and norms. Again, behavior also, symbol also, and artifacts also that characterize the certain group, okay, or individual. जो shared norms होते हैं, that is a culture basically. Yes or no? And culture comes from where? Culture comes from institutions. ठीक है? Very good. Culture comes from institutions. Yes or no? Institution make the culture, no? Religion make the culture, na? Yes or no? Education make the culture. Family make the culture. Yes or no? So culture comes from the institution. And तो फिर culture क्या हो गया? Who shared the beliefs, values and norms, behavior, symbols and artifacts. Okay? Which is characterized for the particular society or social group. एक सोसाइटी का कल्चर दूसरी सोसाइटी से अलग होगा ना? यस और नो? राइट? तो ये हो गया कल्चर. ठीक है सर, कल्चर तो हो गया कि शेयर्ड वैल्यू और बिलीव्स, दैट इज अ कल्चर. अगर एक ही सेंटेंस में लिखना होगा तो शेयर्ड वैल्यू और बिलीव्स, दैट इज अ कल्चर बेसिकली. और वो स्टेटमेंट लिखो कि कल्चर इज शेप्ड बाय द व्हाट? इंस्टीट्यूशंस. ठीक है? कल्चर इज शेप्ड बाय इंस्टीट्यूशन. ये लिखा है शेयर्ड मीनिंग, प्रैक्टिसेस एंड पैटर्न ऑफ बिहेवियर.
लैंग्वेज भी एक कल्चर हो गया. यू यूज द स्पेसिफिक लैंग्वेज बिकॉज यू बिलोंग फ्रॉम स्पेसिफिक कल्चर. ये सुनो, ये तो हो गया. इसके थिंकर्स अलग से डिस्कशन करेंगे जब हम नॉन पॉजिटिविस्ट डिस्कस करेंगे, मार्गरेट मीड और क्लिफोर्ड ग्रीट्स. नाउ यू टेल मी. हाँ, अभी ये टर्म डिस्कस करते हैं और फिर वापस कल्चर पे आते हैं. कल्चरल लैग. व्हाट इज दिस कल्चरल लैग? डिक्शनरी मीनिंग क्या हो सकता है? लैग, समथिंग इज लैगिंग, योर कल्चर इज लैगिंग. So when we say your culture is lagging, to culture, to generation. हाँ, करेक्ट. कल्चरल लैग क्या होता है बेसिकली? अरे एग्जांपल से ये ऑनलाइन फ्रॉड मैंने बताया था ना शायद ओरिएंटेशन सेशन में, नहीं बताया था. ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं. जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, सर मुझे लॉटरी लगी है 5 लाख की, ठीक है, जस्ट सेंड मी द ओटीपी. ओके, और फिर जो 5 रुपए थे वो भी चले गए अकाउंट से, राइट? सो दिस इज व्हाट, कि आई एम नॉट इक्विप्ड विद दिस टेक्नोलॉजी, right? And if I am not equipped with this technology, why I am not equipped? Because of XYZ reasons. So what is that? Everybody is adopted to this technology, but I am not equipped, so I am lagging behind, na? So that is a cultural lag. Yes or no? Why I have given the example of technology only? Because this terminology is being associated with the what? टेक्नोलॉजी ओनली. कल्चरल लैग. ओके, फिर दूसरे इसमें भी होता है, लेकिन जैसे कि अभी रिचुअल्स, एक सोसाइटी में बहुत ज्यादा रिचुअलिस्टिक सोसाइटी होगी, सारे लोग रिचुअल्स कर रहे हैं लेकिन मुझे वो नहीं हो रहा है, मुझे वो नहीं जम रहा है, तो आई एम अगेन कल्चरल लैग है वहां पे. यस और नो? एआई इज इंट्रोड्यूस्ड बट एवरीबडी कैनॉट कोप अप विद एआई, कल्चरल लैग है. यस और नो? क्लियर है? राइट? सो दिस इज योर कल्चरल लैग. refers to the time gap or delay between changes in the material technological condition and the corresponding adjustment in the cultural beliefs, norms and values. यानी टेक्नोलॉजी तो आ गई हमारे यहाँ पे, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, बट हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है उस टेक्नोलॉजी का. यस और नो? कैन यू टेल मी द एग्जांपल? नई कार खरीदी मैंने 50 लाख की, लेकिन अभी तक वो बाहर क्यों नहीं निकाली है? क्योंकि शुभ मुहूर्त की राह देख रहा हूँ. ओके, आई एम वेटिंग फॉर अ शुभ मुहूर्त, तभी मैं गाड़ी निकालूंगा मैं. ओके, कल्चरल लैग है ये. 50 लाख की गाड़ी में सेफ्टी होगी ना, तो कौन सा शुभ मुहूर्त देख रहा है तू? यस और नो? वो नींबू मिर्च से गाड़ी की सेफ्टी होने वाली है क्या? कल्चरल लैग है. यस और नो? दिस इज अ कल्चरल लैग. यू आर नॉट कोपिंग विद द व्हाट? एडवांस टेक्नोलॉजीज. समझ में आ रहा है कल्चरल लैग? ओके, और कोई एग्जांपल आप देख सकते हो कल्चरल लैग. William Ogborn is the person who gave this concept called cultural lag basically, and he gave this concept from the perspective of technology only, right? जैसे यहाँ लिखा है, देखो कहाँ गया. William Ogborn is the person who gave the concept of cultural lag to the social change. Adaptation emphasizing the role of technological innovation. ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज के डिस्कशन के पर्सपेक्टिव में ये डिस्कस किया है विलियम ऑकबॉर्न ने कि वेस्टर्न कंट्रीज में जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होती है और वो टेक्नोलॉजी जब ईस्टर्न सोसाइटीज में आती है तो पीपल कैनॉट कोप अप विद इट. इकोनॉमी में ये हम लोगों ने सीखा है. यस और नो? आई गिव यू द हिंट, यू टेल मी इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स, विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज दिस? अरे है. Which type of unemployment is this? When people cannot cope up with advanced technologies, they have to lose their job. अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट हा टाइप तरी आहे का अनएम्प्लॉयमेंट मध्ये? मग तो वो तो उलट उलट हो गया ना, उल्टा हो गया ना. विलिंग टू डू द जॉब बट बिकॉज सो दे हैव अ हायर स्किल. यहाँ पे क्या है? दे आर नॉट अडॉप्टिंग टू द चेंज, राइट?
स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट. व्हॉट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? वाचलंय का स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? हा, वाचलंय ना, मी शिकवलंय ना. मग स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट काय असते? तेच असतं, टेक्नोलॉजी इज बीइंग एडवांस्ड एंड आई एम नॉट कोपिंग अप विथ इट. यस और नो? मुझे पेजर बनाना आता है, वो पेजर जो था ना पिछले किसी जमाने में, आई कैन what work on that pager, but I cannot work on mobile phones. I cannot operate mobile phones. So you becomes outdated in the society. Yes or no? Hmm? ते तर सांगितलं ना, ऑनलाईन फ्रॉड. ऑनलाईन फ्रॉड घेता येईल ना एक्झाम्पल आपल्याला. ठीक आहे, राईट. Digital divide is also the term we use oftenly. Digital divide is also example of what? Cultural lag. Yes or no? Ethical dilemma in biotechnology, whether we should go for a test tube baby or not. Cultural lag. Yes or no? Cultural lag है. क्लोनिंग करनी है या नहीं, कल्चरल लैग है. Yes or no? We have the technology of cloning but we are not doing it. Ethical dilemma है ना? तो इसीलिए एथिक्स में भी ये टर्म यूज कर सकते हो जब जब एथिक्स का डिस्कशन होगा तब. अंडरस्टूड? कल्चरल लैग. हाँ. नाउ वी हैव टू अनदर टर्म्स विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? कल्चर. फर्स्ट इज योर एथनोसेंट्रिज्म एंड देन जेनोसेंट्रिज्म. एथनोसेंट्रिज्म का क्या मतलब होता है? डिक्शनरी मीनिंग पता है? वर्ड से कुछ हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं? एथनोसेंट्रिज्म, you have a obsession for your own culture and you demean the other culture. Understood? माझंच सगळ्यात भारी. ठीक आहे, माझं कल्चर जे आहे, माझी संस्कृती जी आहे तीच सगळ्यात भारी, बाकीच्यांचं हा त्या लेवलला नाहीये थोडक्यात. ठीक आहे, दॅट इज युअर एथनोसेंट्रिझम. बरोबर? एथनिसेंट्रिझम इज अ concept which refers to the belief in a inherent superiority of one's own culture. Okay, we are superior than others. Aryans, हाँ, आर्यन रेस सुपीरियर देन अदर, तो होता है एथनोसेंट्रिज्म. राइट? एंड अगेन, अगर ये है सुपीरियर देन अदर, सो यू आर ट्रीटिंग अदर्स एज ए इंफीरियर, नो? So this comes with the tendency to view the other cultural practices and belief through the lens of one's own cultural norms, and this can lead to the judgment, biases and prejudices against the other culture. So this has the negative phenomena. This is the negative phenomena. Ethnocentrism is basically a negative phenomena. ठीक है? You are treating your own culture as a superior and other culture as a inferior. Okay? तो इससे क्या होगा? इससे कॉन्फ्लिक्ट होगा ना? Yes or no? This may lead to conflict. Yes or no? काय झालं? औरंगजेबचं काय? अच्छा, हा हा, म्हणू शकतो, म्हणता येईल. तसे तर भरपूर उदाहरण आहेत आपल्याकडे, हिस्टॉरिकली भरपूर उदाहरण आहेत आपल्याकडे. वेन वी ट्रीट की दे आर वन इज अ सुपीरियर अँड अदर इज इन्फिरियर. सो एथनोसेंट्रिझम, सिंपल एथनोसेंट्रिझम. पुढे आहे, समजलं का? एथनोसेंट्रिझम सांगतो, दोघांबद्दल सांगतो. झेनोसेंट्रिझम. व्हॉट इज झेनोसेंट्रिझम? अपोजिट टू एथनोसेंट्रिझम. नहीं, रिस्पेक्ट नहीं. We consider other culture as a superior culture and mine is inferior one, and we try to adopt it. Yes or no? If other is superior, then we'll try to adopt it, no? So that is xenocentrism basically.
कॉन्ट्रास्ट विथ एथनोसेंट्रिज्म, जैसे मैंने कहा अभी, एथनोसेंट्रिज्म हो गया फेवरिंग, एंड xenocentrism refers to the preference for or admiration of aspect of another culture over one's own culture. ठीक है, that is xenocentrism. जो कोई भी फैशन ट्रेंड आता है वो पहले अडॉप्ट करते हैं ना हम लोग, xenocentrism. ठीक है, xenocentrism. हाँ हाँ, अभी ये कंफ्यूजन है. कैन वी से दैट xenocentrism इज westernization? Westernization is the phenomena given by M.N. Srinivas. So can we say that xenocentrism is westernization? Answer is no. Huh? Westernization is following the Western culture. Okay. Analogy is same, but there is a slight difference. How? Westernization is you are just adopting the Western culture, Western norms, Western beliefs. Okay. But xenocentrism may be localized also, na? Yes or no? मैं महाराष्ट्र में रह रहा हूँ लेकिन मैं यूपी वाले बिलीव्स एंड टर्म्स अडॉप्ट कर रहा हूँ. Yes or no? So that is not westernization, but that is xenocentrism. Understood? This is the minute difference between westernization and xenocentrism. बहुत लोग ये कंफ्यूजन करते हैं लेकिन डिफरेंस है. अंडरस्टूड? ठीक है, ये वेस्टर्नाइजेशन तो बहुत डिटेल में डिस्कस करना है जब एम एन श्रीनिवासन डिस्कस करेंगे, है ना, पेपर 2 में, पेपर 2 यूनिट नंबर 1 विल डिस्कस दैट. ठीक है, तो xenocentrism समझ में आ गया. फैशन ट्रेंड, कंज्यूमर प्रेफरेंस. एथनोसेंट्रिज्म टर्म दी थी ग्राहम समनर और xenocentrism कहा था आर.के. मर्टन ने. ठीक है, यहाँ पे दिया होगा ना कहीं. हाँ है, विलियम ग्राहम समनर who gave the term, explored the ethnocentrism as a universal human tendency. Is it universal human tendency? Ethnocentrism, is it the universal human tendency to consider your own culture as a superior one? No. मग येडा आहे का? हा, मी थोडी सांगतोय, तो सांगतोय ना. ओके, एक्सप्लोर बऱ्याच वेळा असं वाटू शकतं, यार हे काय बोलताय, ते चुकीचं आहे. मी तुम्हाला डे 1 ला सांगितलंय, वी डोंट वॉन्ट टू जज द थिंकर. ओके, वी जस्ट हॅव टू स्टडी व्हॉट ही ऑर शी हॅज सेड. ओके, आणि जर त्यांना जज करायचं असेल तर तेवढं जावं लागेल ना. हा, आता म्हणून इथे डिस्कशन होतं. बरोबर आहे, म्हणजे तुमचं मत काही चुकीचं नाही. यू आर नॉट रॉंग इन दिस की वेन यू आर से की सर दिस इज रॉंग. ओके, यू आर राईट वेन यू से दिस इज रॉंग. व्हाय? बिकॉज you don't know the background of the thinker when he gave or propagated that theory. Yes or no? So I always tell, when we discuss the thinkers, you must understand the background of the thinkers first. ठीक है, सो आता ते ज्या सोसायटी मध्ये येतात, मधून येतात, उस सोसायटी में तो सारा वही होगा. एवरीबडी ही हैज सीन और ही हैज स्टडीड, he say कि everybody is saying that my own culture is the best culture. Yes or no? Therefore he propagated this, it is a universal phenomena, right? Similarly, सारे जब thinkers discuss करेंगे, you must understand the background of the thinkers first. Please make sure this thing, है ना. जब जैसे कि let's take an example of Immanuel Durkheim. Why, what do you think, why he has given the theory of suicide? क्योंकि सुसाइड के थॉट्स उसे आते थे पूरे लाइफ टाइम कि शुड आई कमिट द सुसाइड. यस इट इज. अरे मी जोक कशाला करेल ना. सुसाइड के थॉट क्यों आते होंगे उसे? ही इज सफरिंग फ्रॉम द सिचुएशन लाइक दैट, सुसाइडल टेंडेंसीज. व्हाई? बिकॉज जो वो जहां पढ़ाता था, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. ठीक है, और उस वर्ल्ड वॉर 1 में, उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 में तो क्या है पता है हमें कि, तो वो जिस क्लास को पढ़ाता था, सारे क्लास के बच्चों को उठा के लेके गई थी गवर्नमेंट वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए. चलो, और वहां जाके ये क्या बच्चे क्या लड़ेंगे? खत्म. ओके, और उस वक्त उन बच्चों में उसका बेटा भी था. हिज सन वाज देयर.
who has got killed in war. इसीलिए he came up with theory on suicide. Why Karl Marx is saying कि everything will boil down to economy? Because Karl Marx has suffered from severe sort of this deprivation. Okay, जहां जहां कार्ल मार्क्स जाता था, रेडिकल था वो बंदा, जहां जहां वो जाता था वहां की गवर्नमेंट उसको निकाल देती थी, चल यहाँ पे रहना नहीं है, निकलो। फ्रांस गवर्नमेंट ने 2 बार निकाल दिया उसे फ्रांस से। ओके, सो इसका मतलब ये है कि और उसके खुद के 3 बच्चे माल न्यूट्रिशन की वजह से मर गए कार्ल मार्क्स। तो ही नोज द वैल्यू ऑफ इकोनॉमी, वैल्यू ऑफ मनी, देयरफॉर ही गेव हिज लाइफ फॉर इकोनॉमी। ओके, राइट। और कॉन्फ्लिक्ट, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है? क्योंकि उसने घर में कॉन्फ्लिक्ट देखा है ना, इसीलिए वो कॉन्फ्लिक्ट की थ्योरी देता है। तो इसीलिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड, देन यू विल अंडरस्टैंड कि व्हाई दिस पर्सन इज सेइंग दिस वे। ओके, रियल लाइफ में भी वही होता है ना। सो सिचुएशन इज बैड, पीपल आर नॉट। ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड द पीपल सिचुएशन एंड नॉट द पीपल। ठीक है, बरोबर है का? अंडरस्टूड? हाँ, ओके, चलो जायचंय का मग पुढे? यहाँ पे दिया है इमिग्रेशन डिबेट्स। जो है इमिग्रेशन डिबेट्स क्या है? वही है ना, एथनोसेंट्रिज्म, कि आवर कल्चर इज सुपीरियर, ओके, प्लीज डोंट कम इनटू आवर होम और आवर कंट्री। बांग्लादेशियों को कहते हैं ना आप लोग, ये सुनो, आवर कल्चर इज सुपीरियर, प्लीज डोंट कम इनटू आवर कंट्री। एथनोसेंट्रिज्म, इमिग्रेशन। ग्लोबलाइजेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज, इससे भी एथनोसेंट्रिज्म आता है। जेनोसेंट्रिज्म भी आएगा इससे, ग्लोबलाइजेशन से। ये सुनो, आएगा कि नहीं? जेनोसेंट्रिज्म भी होगा, एथनोसेंट्रिज्म भी होगा ना। डन, जेनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म। सो इट इज विथ रिस्पेक्ट टू द कल्चर। विलियम ग्राहम समनर ने आपको दिया था एथनोसेंट्रिज्म, एंड जेनोसेंट्रिज्म किसने दिया था कंसेप्ट? यहाँ दिया होगा ना, was popularized by the Robert Merton. Okay. So this is about xenocentrism and ethnocentrism. Then again one more concept with respect to culture is cultural relativism. What do you mean by cultural relativism? Hmm? Read the sentence. What do you mean by cultural relativism? Basically it is a concept in anthropology and sociology both. अरे मनात वाचा. Understanding and evaluating cultural practices, beliefs, and norms within their own culture in the context rather than judging them based on the own cultural standards. क्या मतलब है इसका? इसीलिए मैंने कहा कि समझ में आता है कि नहीं, देखते हैं। तो ये तो एथनोसेंट्रिज्म हो गया ना। हाँ, नहीं, बस इतना ही पढ़ो, जितना वहां पे लिखा है उतना ही पढ़ो और बताओ कि व्हाट कुड इट कुड बी, व्हाट इट कुड बी। हाँ, हम्म, हाँ हाँ हाँ, पण मग ते का बरं करताय तुम्ही? Why you are doing it? For understanding of that particular culture. असं. Why this term is there? Cultural relativism. Relativism culture समजता है, relativism पण समजता है. We are trying to relate the culture. Simple example. Okay, I'll tell you the example. what is the example? Suppose असं होतं ना, घरात आपण बघितलेलं असतं बऱ्याच वेळा, बहुत बार ये देखा होता है कि घर में कोई पूजा चल रही है, ओके, एंड
the child in the home is asking too much question about everything. What is this? Why we have to do it? इससे क्या होगा? Yes or no? He is trying to relate to the culture. Yes or no? पूजा करते वक्त टोपी पहननी है, क्यों पहननी है टोपी? तो हर रोज क्यों नहीं पहनते फिर टोपी? पूजा करते वक्त ही क्यों पहननी है? Yes or no? So that person is not judging the culture. He just trying to understand the culture, trying to relate to the culture. Yes or no? This is cultural relativism basically. Understood? In a very simple terms. यही तो दिया. Evaluating the cultural practices, beliefs and norms within their own cultural context. वो बंदा भी तो उसी कल्चर का है ना? Yes or no? फिर भी वो क्वेश्चन कर रहा है. Why he is questioning? He is not demeaning. He is not making it inferior or superior. He is just asking the question. What is the significance of it? So that I can relate to it. है ना? मुझे अगर इसका मीनिंग समझ में आ जाए तो मैं रिलेट कर सकता हूं. And then I'll follow this. Yes or no? So क्यों करना है? So to understand the culture and to follow that culture. Yes or no? कास्टिझम आणि रेसिझम एक्झाम्पल आहे का एथनोसेंट्रिझमचे? कास्टिझम इज द आउटकम ऑफ एथनोसेंट्रिझम. प्रेरणा वी कॅन से कास्टिझम अँड रेसिझम. कळलंय का? हाँ. एग्जाम्पल्स 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 लिखते जाओ, है ना? वो समझेगा नहीं फिर एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिया था. A child at a home is trying to understand the rituals, religious rituals. Okay, that is so that he can connect to it. And then he will acknowledge that कि फिर वो दूसरी जगह पे फिर उसे समझ एक वहां घर पे समझ में आया कि ओके टोपी पहननी है. ही अंडरस्टूड द कंसेप्ट. ओके क्यों पहननी है. देन ही गोज टू अदर रिलीजियस पीपल. उसके बाजू में दो दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, वो उनका कुछ रिलीजियस रिचुअल्स कर रहे हैं परफॉर्म. तो वहां पे वो कुछ अलग से ही कर रहे हैं. तो देन ही आस्क कि आप टोपी क्यों नहीं पहन रहे हो? क्योंकि मुझे तो वही बताया गया. यस और नो? फिर वो उनका एक्सप्लेनेशन देंगे. देन ही अंडरस्टूड दैट. तो ही रिलेट दैट कल्चर. देन ही अंडरस्टूड द डिफरेंस. ही इज नॉट डिमीनिंग इट. यस और नो? सुपीरियर इंफीरियर का डिस्कशन नहीं है यहाँ पे. अंडरस्टूड? Okay, then he will be in a better position to understand which culture to follow. Yes or no? After relating it, है ना? इसीलिए दिया है कि meaningful and appropriate within the specific social and historical context. Here the okay, समझ में आ गया? What is cultural relativism? हाँ, so this is your culture. यही दिया है कि cultural practices, cultural relativism entails studying and interpreting the practices such as rituals, tradition, social norms. कोई डिस्कशन किया हम लोगों ने. ठीक है, तो ये सब हमें डिस्कस करना है. दैट बिकम्स योर कल्चरल रिलेटिविज्म. तो क्या क्या सीखा कल्चर के बारे में? कल्चर, कल्चरल लैग, कल्चरल रिलेटिविज्म, जेनोसेंट्रिज्म, एथनोसेंट्रिज्म. तो ये 5 टर्मिनोलॉजी डिस्कस की कल्चर के बारे में. हाँ, अलग अलग जगह पे ये 5 टर्मिनोलॉजी डिस्कस होंगी. ठीक है, ओके. हाँ, क्लियर? जाना है आगे? हाँ, अभी प्रोसीड. हाँ, तो अगला है आपका स्टेटस एंड रोल. दिस इज वेरी इजी. स्टेटस एंड रोल इज वेरी इजी कंसेप्ट. व्हाट इज दिस स्टेटस एंड रोल? कहाँ गया स्टेटस? हाँ, स्टेटस इज व्हाट? जो सर व्हाट्सएप पे रहता है वो स्टेटस है ना? दैट इज अगेन वन टाइप ऑफ अ स्टेटस ओनली, राइट? स्टेटस इज सोशली डिफाइंड पोजीशन और रैंक ऑफ अ पर्सन. ठीक है, that individual owns within a society or group. Socially defined position or rank of a person or individual. स्टेटस कब रखते हैं? कोई ऑकेजन हो तो भी स्टेटस रखते हैं ना. सोशली डिफाइंड पोजीशन, राइट, और रैंक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सोशली डिफाइंड? सोसाइटी ने, हाँ ऑब्वियसली सोशली डिफाइंड यानी सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया हुआ होगा. दैट इज सोशली डिफाइंड. ऐसे थोड़ी ना है कि व्हेन अ पर्सन
सी सोशली एक्सेप्टेड होगा तभी वो सोशली डिफाइंड होगा, राइट? सोशली अनएक्सेप्टेड होगा वो सोशली डिफाइंड नहीं होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ पर्सन इज व्हाट गिविंग अ पोज विद द नाइफ, वो स्टेटस रखेगा क्या? कभी देखा है क्या आपने? व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट सोशली एक्सेप्टेड ना, इट इज अ डेविएंट बिहेवियर, यस और नो, राइट? सो सोशली एक्सेप्टेड होगा वही सोशली डिफाइंड होगा। तो सोशली डिफाइंड की जगह आप एक्सेप्टेड भी लिखोगे तो भी चलेगा। सोशली एक्सेप्टेड पोजीशन एंड रैंक्स ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज अ स्टेटस। सो यू टेल मी, स्टेटस के बारे में जब डिस्कशन करेंगे तो यू टेल मी, कैन दिस स्टेटस वैरी विद द टाइम फॉर इंडिविजुअल? देन गिव मी द एग्जांपल्स when I can say कि the status can be vary in the society for a particular individual. You take your own example. Now you have a status of what? Student. Once you become an officer, your status will change, your status will increase, yes or no, right? But by birth you are a human being, so you come with one sort of status also. hmm? Huh? So you are a human, so when you are a human, that is also a status na, yes or no? You are not animal, you are different from animal, plants. You are a human, so that is also one sort of status, yes or no? But that doesn't change till you die. हाँ, नहीं ना, एटलीस्ट यानी अभी तो इतना तो नहीं हुआ है ना एडवांस टेक्नोलॉजी, कल्चरल लैग इतना तो नहीं आया अभी तक, राइट? ह्यूमन गेट कन्वर्टेड इनटू प्लांट और एनिमल। तो फिर तो ये क्या हो गया, गलत हो गया ना। अभी सर आपने कहा कि स्टेटस कैन बी चेंज और अभी आप कह रहे हो कि स्टेटस कैन नॉट बी चेंज। हाँ, तो क्या सही है क्या गलत है? हम्म, यस श्रुति, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। हम्म, इनहेरेंट का इनहेरेंट, इफ द स्टेटस इज इनहेरेंट इट वोंट चेंज, ऐसा कहना है? व्हाट इज इनहेरेंट स्टेटस देन? टेल मी द एग्जांपल ऑफ इनहेरेंट स्टेटस एक्सेप्ट दिस ह्यूमन बीइंग। You are right, just tell me the examples. The status which you inherent that could not be changed, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और जब राजा का बेटा राजा बनेगा तो उसका तो स्टेटस है ही, that is inherent, yes or no? Understood? That is a inherent status, no? जब राजा का बेटा ही राजा बनता है तो इनहेरेंट ही स्टेटस है ना। नेपोटिज्म, ऑल नेपो किड्स वी सी ऑन टेलीविजन, मूवीज, यस और नो? हीरो का बेटा ही हीरो बनेगा, तो ये क्या हो गया? इनहेरेंट स्टेटस हो गया ना, दैट वोंट चेंज। तो यही दो दो टाइप्स होते हैं स्टेटस के, ओके? द स्टेटस विच कैन बी चेंज्ड विद टाइम एंड स्टेटस विच कैन नॉट बी चेंज्ड विद टाइम, ठीक है? उसे सोशियोलॉजी में कहते हैं, अभी चेंज तो ये तो वर्ड क्या है, ये तो वर्ड डेली यूज का है ना, ये थोड़ी वर्ड यूज करेंगे। इसे कहते हैं ascribed status and achieved status, ठीक है? द स्टेटस बेसिकली, ascribed status जो होता है वो when we born in a particular with a particular gender, let's say, yes or no, right? वो चेंज होने वाला है क्या? ह्यूमन तो हो गया, लेकिन अभी ह्यूमंस में भी मेल फीमेल, यस और नो? तो मेल फीमेल चेंज होने वाला है क्या? नहीं चेंज, तो टेक्नोलॉजी से होता है लेकिन दैट इज रेयर, है ना? सो विल टेक अ ग्रांटेड एग्जांपल हियर, ओके? अभी के लिए, सो ascribed status इज बीइंग बोर्न इनटू वेल्दी फैमिली, तो ये जरूरी है बीइंग बोर्न, ठीक है? आप कौन से जेंडर में बॉर्न होते हो, आप कौन से फैमिली में बॉर्न होते हो, ओके? दैट इज व्हाट, दैट इज अ ascribed status basically, which you cannot change. And what is achieved status? As the name suggests, you became doctor, you became engineer, है ना? You uplifted yourself and your family from the poverty, okay? You have got class 1 situation, class 1 post, you have secured this post, so that is what achieved status, you have achieved it, no? So that is a achieved status basically, right? So write down one sentence
First let me tell you, then write it down. First understand, then write it down. Okay. Status is the phenomena which indicates, specifically achieved status is the phenomena which indicate the social mobility of the individual in the society. Achieved status is the phenomena which indicate the social mobility of the individual in the society. Mobility का मतलब क्या है? Moving from one point to other point, that is mobility basically. Yes or no? So when the person is improving his rank, okay, then he is moving from one strata of society to other strata of society. Yes or no? One section to other section. Then this is what? This is a social mobility. Yes or no? और मोबिलिटी हमेशा अपवर्ड ही होगी ऐसा नहीं है, मोबिलिटी कैन बी डाउनवर्ड एज वेल. यस और नो? ठीक है. हाँ, क्रिमिनल हो गया, इकोनॉमिक फिगिटिव हो गया. यस और नो? विजय माल्या, राइट? पॉडकास्ट देखा ना आप लोगों ने, राइट? पॉलिटिकल लीडर, राइट? रिटायर्ड सारे लोग, जो कुछ भी है, जो कोई हायर पोजीशन पे होल्ड करते थे लेकिन अभी रिटायर हो चुके हैं. यस और नो? सो अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, राइट? राइट डाउन व्हाट आई सेड. हाँ, एवढंच बोललो का? Achieved status can be seen from the नाही तर असं करा, हे खोडून टाका, उलट आहे ना. जस्ट इरेज दिस थिंग. social mobility can be seen from the phenomena called achieved status. No, xenocentrism and westernization is different. Social mobility can be seen from the phenomena called achieved status. अरे यार, हाँ, काही लिहा. आता इंग्लिश नाही शिकवू शकत मी इथे. तसं नाही, उलट आहे. अरे अचीव्ड स्टेटस वरून सोशल मोबिलिटी समजेल का सोशल मोबिलिटी वरून अचीव्ड स्टेटस समजेल? हा, कशावरून काय समजेल? अचीव्ड स्टेटस वरून सोशल मोबिलिटी समजेल का सोशल मोबिलिटी? पहिले काय होईल? तुम्ही आज स्टुडंट आहात, नॉट मँगो पीपल आहात तुम्ही सगळे, कॉमन मॅन, ठीक आहे. उद्या रिझल्ट मध्ये नाव आलं, मग काय झालं तुमचं? स्टेटस वाढलं, बरोबर? मग त्याच्यावरून ठरवा काय पहिले येणार. अचीव्ह स्टेटस पहिले येईल का मोबिलिटी पहिले येईल? तुम्ही जेव्हा वर जाताय तेव्हा मोबिलिटी मिळते ना तुम्हाला. येस ऑर नो? मग राईट. आय वोंट बी टेलिंग यू, राईट डाऊन युअर सेल्फ. काय चुकीचं तर चुकीचं, नंतर भेटा वाटलंच मला, मग मी सांगतो काय असेल लेक्चर नंतर. ठीक आहे, थोडासा चालवावं लागेल. ठीक आहे, सगळं आयतं नाही मिळणार. एवढं आयतं दिल्यावर अजून काय पाहिजे? बिकॉज यू हॅव टू राईट डाऊन द आन्सर्स देअर. कन्फ्युजन असेल तर लेक्चर नंतर सांगेल, काय काळजी करू नका, काही घाबरू नका जाऊ. ओके, लेक्चर नंतर सांगेल काही कन्फ्युजन असेल तर, पण विचारा. अंडरस्टूड? कुठे? कुठल्या स्टेटस मध्ये? हा, बिलॉंगिंग टू अ स्पेसिफिक एथनिक ग्रुप. हा, ऑब्विसली. व्हॉट डू यू मीन बाय एथनिक ग्रुप? एथनिसिटी मध्ये काय येतं? यू आर स्पीक एथनिसिटी मध्ये लँग्वेज पण येते. लँग्वेज इज वन एस्पेक्ट ऑफ एथनिसिटी, because ethnicity gives you the identity. If you are speaking one particular language, this also gives you an identity, right? So now let's take an example of language, right? If you are speaking one particular language, huh, right?
So that comes your ascribed status. Why? Because I am speaking one language, my son is also speaking that same language, his son is also speaking the same language. So that is ascribed status. No, कुठेही गेले जगात मराठी माणूस भेटल्यावर काय अरे मराठी का, so that is what ascribed status. Yes or no? Right? Understood? हा बरोबर. सो एथनिसिटी मध्ये एक एक्झाम्पल येतं लँग्वेज. ओके, लँग्वेज एथनिसिटी. ठीक आहे. सो हे एक्झाम्पल घेतलं आपण. वी टूक दिस एक्झाम्पल एज अ लँग्वेज. अंडरस्टूड स्टेटस. तो नाउ इफ यू अंडरस्टूड द स्टेटस तो फिर दूसरा तो सेम ही है. एग्जाम्पल छोड़ दीजिए यहाँ पे. कहाँ गया रोल? कहाँ है रोल? दिस इज रोल. तो व्हाट डू मीन बाय रोल? रोल भूमिका. Role of a behavior. Role is a set of behavior, rights, obligation and expectation associated with a particular status within a society. So basically status give you the role. Yes or no? You pass the exam, you become an IAS officer. So IAS officer is what? This is a role. This is not a status. Yes or no? समझ लगा? हाँ, मदर का? हाँ, नहीं नहीं नहीं. Woman is a status and mother is a role. आपण मग तू स्टेटस काय म्हटला? रिअरिंग अँड केअरिंग. ठीक आहे, बरं ठीक आहे, ओके, राईट, यू आर राईट. ठीक आहे. तो काय झालं? ठीक आहे, ते मदरचं जाऊ दे. हे कळलं का? हा, अंडरस्टूड. दिस रोल इज व्हॉट बेसिकली. सांगतो एक्झाम्पल्स पण सांगतो, काय काळजी करू नका. रोल इज व्हॉट? रोल इज बेसिकली डिफाइंड फ्रॉम द स्टेटस. हे लक्षात घ्या है ना. वॉट एव्हर प्रिस्क्राइब ड्युटीज, राइट्स, ऑब्लिगेशन्स, एक्सपेक्टेशन असोसिएटेड विथ द पर्टिक्युलर स्टेटस, दॅट इज युअर रोल. सो मॅन king is a role. Yes or no? Or king is a status? You tell me. King is a role or king is a status? याच्यावरून सांगा ना आता. सेट ऑफ बिहेवियर, राइट्स, ऑब्लिगेशन्स अँड एक्सपेक्टेशन्स. हा, किंग इज अ रोल बेसिकली. ओके, किंग इज नॉट अ स्टेटस. ठीक है. Status is what? Status is you have that worth, you have that network, you have that power, that gives you status. Yes or no? आपण म्हणतो ना, काय म्हणतो मराठीमध्ये? महत्व माणसाला नाहीये, खुर्चीला आहे. Yes or no? बरोबर का? So खुर्ची is status and whatever expectation are there from that खुर्ची, that is a role. Yes or no? So उसमें अलग अलग लोग जब बैठेंगे, if X person is sitting on a specific chair, यानी जो important chair है, chair on a prime minister, suppose, let's take an example. So if that person is a ethical one, then he'll what? Status तो सबको मिलने वाला है ना. X person sitting on a prime minister chair, he is also getting the status. Y person sitting on the prime minister chair, he is also getting the status. Yes or no? And they have the particular role also. But सारे लोग वो ऑब्लिगेशन, राइट और एक्सपेक्टेशन फुलफिल कर सकते हैं क्या? नो. राइट? समझ में आ रही है बात? So this is the difference between role and status. So status may be common but role may vary. Yes or no? Because role is more dependent on the individual. Yes or no? समझ में आ रही है बात? Role is more dependent on the individual. What role you perform? अरे movie. Forget about prime minister. है ना? Can you think of कोई भी मूवी बताओ जो आपको अच्छी लगती है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी मूवी जो पॉपुलर है और जो आपको अच्छी लगती है. अच्छा, पुष्पा. ठीक है. पुष्पा. तो पुष्पा में जो पुष्पा राज है, क्या नाम है, अल्लू अर्जुन. ठीक है.
तो अगर अल्लू अर्जुन इज अ एक्टर, यस और नो, बट जॉनी लीवर इज ऑल्सो एन एक्टर, यस और नो, तो दे हैव द स्टेटस कॉल्ड एक्टर. बट अगर पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन की जगह पे जॉनी लीवर को लेते, चलेगा क्या? बिकॉज दैट इज अ रोल, यस और नो. व्हाट रोल यू हैव इन द मूवी, तो इसीलिए मूवी में स्टेटस नहीं बोलते हैं ना, रोल बोलते हैं ना, यस और नो. सो रोल में वैरी, रोल का इम्पैक्ट में वैरी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल. So role is more of a individualistic phenomena than the status. Status is fixed. Understood? जैसे कि यहाँ दिया है पैरेंटल रोल है, ऑक्यूपेशनल रोल है, ये भी डिस्कस कर सकते हैं. ऑक्यूपेशनल के बाद वहां पे लिखा है टीचिंग, तो याद आ गया कि टीचर, टीचिंग, राइट. टीचर, मैं आपका टीचर हूं, सो दैट इज अ स्टेटस. ओके ओके, बट आई हैव अ सर्टेन स्पेसिफिक रोल टुवर्ड्स यू. तो आप कंपैरिजन कर सकते हो ना कि दिस टीचर इज हाउ ही इज टीचिंग सोशियोलॉजी. ओके, X teacher is teaching sociology, Y teacher is teaching sociology. So that may differ. Everybody is playing a role of teaching, but that may differ. Yes or no? यहाँ पे क्यों बैठे हो आप? Because you like the role I am performing. Yes or no? Therefore you are sitting here. Clear है? Right? So this is the role. So the role defines the roles can vary from the individual perspective. इसीलिए तो फिर आते हैं, right? नॉन पॉजिटिविस्ट. ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, और अभी 2-3 सेशन में लर्न हो जाने चाहिए ना ये नाम, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और एविन कॉफमन. ये कौन है? दोनों नॉन पॉजिटिविस्ट है ना, जो इंडिविजुअल का डिस्कशन करते हैं. अंडरस्टूड? स्टेटस एंड रोल क्लियर है? रोल एंड स्टेटस also both also can vary from the society to society. Do you agree on this? Status and role is dependent on the cultural values and norms also of a particular society. Yes or no? Let's take an example कि फैमिली है, ठीक है, फैमिली अमेरिकन फैमिली है और इंडियन फैमिली है. तो अमेरिकन फैमिली में भी एक स्टेटस और रोल है फादर और मदर का, इंडियन फैमिली में भी स्टेटस और रोल है फादर और मदर का, लेकिन देयर स्टेटस एंड रोल इज वेरिंग. यस और नो? सो स्टेटस एंड रोल बोथ हैव द व्हाट, इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटल नॉर्म्स एंड वैल्यूज. Yes or no? And therefore they may vary according to the different societies. Understood? Yes, online Mahindra, Prerna, Shruti, everybody else. हाँ, क्लियर? ठीक है, ठीक है, चलो आज के लिए रुकते हैं यहाँ पे. रेस्ट विल डिस्कस इन टुमारो सेशन. एनी डाउट? आज के सेशन में कोई डाउट है? हाँ, काय मोबिलिटी कोणीतरी सांगा. चला, ऑनलाईन स्टुडंट्सला काही डाऊट असेल तर विचारा. कोणीतरी सांगा बाकीच्यांनी. Social mobility can be seen from the phenomena called achieved status. Correct. हे वाचावं लागेल घरी जाऊन, है ना, रीड करना पड़ेगा. जो एग्जांपल्स बताए हैं वो याद रखने होंगे, वो लिखने होंगे, राइट? देन ओनली यू विल अंडरस्टैंड. ओके, ठीक है, डन. टास्क करो कंप्लीट एंड प्लीज सेंड इट टू मी. somebody प्लीज सेंड इट टू मी. यानी सभी के लिए बोल रहा हूँ, जो लिख रहे हो वो भेजो, so that you will have accountability. हाँ, write it in your own language. ओके, ठीक है, चलो, थैंक यू.